Welcome to Cool Guru Academy. Now, in this session, we are going to continue with a parliamentary series that are important lectures of polity, and we'll be studying the parliamentary sessions. A very important topic from exam perspective, parliamentary sessions. Now, in parliamentary sessions, the first one is summoning. Now, in summoning का मतलब होता है बुलाना. So through which article किसको बुलाते हैं और कहाँ जाता है? So through article number 85, president summons each house from time to time. Now, here the term time to time looks very vague. So, is there any constitutional provision given for this word time to time? Yes. At least once in a 6 month. How many times? At least once in a 6 months. That is 6 महीने में एक बार लोकसभा और राज्यसभा को हाउस में आना होगा. मीन्स साल में कितने बार कंपलसरी होता है? 2 times. That is in a year, how many times? 2 times. It is compulsory. That is mandatory. Now, who has the authority to convene the session of the parliament? The very basic question. So it lies with cabinet committee. It lies with cabinet committee on parliamentary affairs. Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. This committee is headed by none other than our defense minister. It is headed by none other than our defense minister. Now currently our defense minister is Rajnath Singh. So Rajnath sir is heading this committee. अब इस कमिटी का काम होता है कि पार्लियामेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करना फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट all this एंड में थप्पा किसका लगता है? Who gives this sign? It is president. क्योंकि why all executive actions in India are taken on whose behalf? On behalf of president. On behalf of president. हर एक executive action जो भी यूनियन लेता है, केंद्र की सरकार, that is central government. So पहला तो हमने देख लिया summoning. Summoning का मतलब क्या होता है? Now seeing the current situation. जैसा मैंने आपको बोला 2 बार हाउसेस का मिलना जरूरी है साल में. एक्चुअली वो कितनी बार मिलती है? वो मिल रही है 3 बार. Why? Is it constitutional provision? Is it constitutional provision? If in MCQ it is given it is a constitutional provision, you should mark it no. It is a convention. Convention मतलब चला आ रहा है. It is not mentioned, it is not binding, but हमने बोल दिया तो चला आ रहा है. So convention के हिसाब से 3 बार मिलते हैं. So first session कब होता है? फर्स्ट सेशन है आपका बजट सेशन. बजट सेशन ना बजट सेशन आपका स्टार्ट होता है फेब से मार्च, अप्रैल और मई तक. फेब, मार्च, अप्रैल, मई, दैट इज 4 months. नाउ आवर नेक्स्ट सेशन इज मॉनसून सेशन. बीच में हमारे हार्ड वर्किंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को 1 महीने का ब्रेक दिया जाता है. हम सबको लगता है उनकी लाइफ बड़ी इजी है, बट इट इज नॉट सो. पूरा देश संभालना है, मजाक नहीं चल रहा है. जो मूवीज पे दिखाते हैं टाइम पास, वो चीजें नहीं होती है लाइफ में. 1 महीने का इनको ब्रेक मिल जाता है, दैट इज जून. सो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर दे वर्क. जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दैट इज फॉर दी 3 months. नाउ द लास्ट वन इज विंटर सेशन. अगेन 1 महीने का बीच में ब्रेक, एंड दैट इज अक्टूबर में ब्रेक, नवंबर और दिसंबर में, फिर जनवरी में ब्रेक, और फरवरी से नेक्स्ट सेशन गेट स्टार्टेड. सो दीज आर दी 3 सेशंस. अब ये वाला कितना हो गया? 2 months. 4, 3, 2. अब एग्जाम में इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ा लेंथीएस्ट सेशन कौन सा होता है? इट इज बजट सेशन ऑफ 4 months. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? बस 2 होनी चाहिए. कन्वेंशन क्या कहता है? 3 करा दो. बजट, मॉनसून एंड विंटर. So I hope
The summoning session is being clear to you all. Through Article 85, President summons each house from time to time. और दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितने महीने का आ सकता है? जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 6 months. मैक्सिमम गैप कितना आ सकता है? 6 months. Okay. Now the next thing after summoning session that we are going to study is adjournment. Adjournment. Now in adjournment session, आपने मूवीज में देखा होगा या फिर कभी कोर्ट में देखा होगा, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे. मतलब अभी के लिए काम रोक दिया जाता है, एक ब्रेक की तरह दिया जाता है. सो हु गिव्स द एडजर्नमेंट? इट इज गिवन बाय द स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन इन राज्यसभा. ये बोलते हैं कि अभी के लिए हम टाइम एक ब्रेक लेते, छोटा सा, 1 दिन का, 1 घंटे का, एंड अकॉर्डिंगली दे वर्क. दिस इज द एडजर्नमेंट सेशन. नाउ आफ्टर एडजर्नमेंट सेशन, नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट सीने डाई. एडजर्नमेंट सीने डाई. इट मीन्स this again this session, who gives the order for it? Speaker in Lok Sabha, Speaker in Lok Sabha, and Chairman in Rajya Sabha. Who is Chairman of Rajya Sabha? Vice President. ये लोग देते हैं ना. एडजर्नमेंट सीने डाई में क्या होता है, यहां पे तो बता दिया जाता है कि for the time being, the session has been stopped, and they also specify the date and timing. यहां पे क्या होता है, they specify the date and timings कि किस टाइम पे मिलना है. Adjournment sine die में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती कि at what time, so they do not mention date and timings when to meet. Okay, so ये थे दो. First one is adjournment and दूसरा है adjournment sine die. Now after adjournment sine die, the next session comes is prorogation. Now in prorogation, first thing that comes is it is headed by whom? और I'll say not headed गलत वर्ड हो जाएगा, कि कौन इसके लिए एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता है फॉर प्रोरोगेशन. सो द ऑर्डर इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट गिव्स द ऑर्डर फॉर प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन. एंड ऑफ द सेशन. एंड ऑफ द सेशन. पहले दो जो हमने पढ़े थे, दे वर गिवन बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस. Second one is, third one is prorogation. Prorogation का मतलब होता है end of the session. Okay, now we are talking about the next one, the last session, that is dissolution. In dissolution, here the orders are given by the president. Dissolution means cessation. Cessation बोल लो, conclusion बोल लो, या फिर नॉर्मल भाषा में बोल लो end of the term of the house. मतलब it is given by whom? President. मतलब now कौन सा हाउस लैप्स होता है? It is लोकसभा. Now dissolution can be of 2 types. या तो फर्स्ट वन कि लोकसभा का 5 years का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, और द सेकेंड वन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है और सरकार गिर चुकी है ड्यू टू पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, सो दीज आर दी 4 सेशंस. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल दी सेशंस स्टेप बाय स्टेप. नाउ फर्स्ट थिंग दैट विल कम इज, चलो आज के लिए मान लीजिए हाउ द स्टोरी लाइन वर्क्स. मैंने जैसे बोला, चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एडजर्नमेंट कर देता हूं. एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद बुलाता हूं. इट मीन्स टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम एंड डेट बता दिए कि भाई कब मिलना है. टिक टिक. हु गिव्स इट? स्पीकर ऑफ लोकसभा. और चेयरमैन में, चेयरमैन किसका?
राज्यसभा में, ठीक, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली एडजर्नमेंट सिनेडाई, ना एडजर्नमेंट सिनेडाई में क्या टाइम एंड डेट स्पेसिफाई किया जाता है? क्या किया जाता है? नहीं, वेरी गुड, नहीं किया जाता। ओके, और यहां पे कौन देता है? अगेन स्पीकर एंड चेयरमैन। सो पहली दो चीजें तो हमने देखी, दीज आर गिवन बाय द स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोरोगेशन। अभी देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे। पहले उसने कहा चलो थोड़ी देर बाद बुलाता हूं, बुला लिया। एडजर्नमेंट सिनेडाई, टाइम नहीं बताया। अभी ऐसा कब होता है? मान लीजिए पहले एडजर्नमेंट तो नॉर्मल इसमें चलता है, एडजर्नमेंट सिनेडाई कब चलता है? जब एंड ऑफ द सेशन होता है। जब मैंने आपको बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन पढ़ा है, उसमें मैंने आपको डेट बताया। जैसे बजट सेशन का डेट क्या था? इट वॉज फ्रॉम फेब, फिर क्या आता है? मार्च, अप्रैल और मई। तो मई के आखिर आते आते स्पीकर क्या कर देगा? एडजर्नमेंट सिनेडाई मोशन पास कर देगा। जैसे एडजर्नमेंट सिनेडाई मोशन होगा, अब क्या होगा? वो बस उसको आगे धकेल रहा है, लेकिन ये एंड कौन करेगा सेशन? इट इज थ्रू प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मींस एंड ऑफ द सेशन, एंड एंड ऑफ द सेशन आपको कौन करता है? इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। आफ्टर प्रोरोगेशन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इससे बड़ा खतरनाक चीज क्या हो सकता है? और डिसोल्यूशन। क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन। नाउ इन डिसोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है? लैप्स, या फिर बोलो एंड ऑफ लोकसभा। क्यों? राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पार्लियामेंट पार्ट 1 में। नाउ एंड ऑफ लोकसभा, दो वजह हो सकती है। या तो 5 इयर्स का टर्म पीरियड खत्म हो गया और न्यू फ्रेश इलेक्शंस हो रहे, या फिर दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और किसी के पास मेजॉरिटी ही नहीं है और वापस से इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, वापस से क्या हो रहा है? बाय इलेक्शंस हो रहे हैं हर एक जगह पे। ठीक है, सो दीज आर दी 4 टाइप्स। नाउ व्हेन डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस टू बिल? बिल को क्या होता है? बिल्स को ना सबसे इजी वे में आपको चीजें बताता हूं। जो भी बिल लोकसभा में है, डजंट मैटर वेदर इट इज पेंडिंग इन लोकसभा और ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा। लोकसभा खत्म तो उनके पास रखी हुई सारी चीजें खत्म। सो ये सारे बिल क्या हो जाते हैं? लैप्स। क्या हो जाते हैं? लैप्स, खत्म। ना कौन कौन से बिल खत्म नहीं होते हैं जब डिसॉल्व होती है लोकसभा? बिल्स पेंडिंग फॉर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। डज इट लैप्स? विल इट लैप्स? नो, इट विल नॉट लैप्स। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बिल्स लैप्स नहीं होंगे। तो पहले तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जो भी पेंडिंग होगा लोकसभा में, ओरिजिनेट होगा लोकसभा में, इट हैज टू लैप्स, इट विल लैप्स। Whereas bills pending for the assent of president, it won't lapse. Next, bill pending या फिर best, bill sent back by the president. ये कौन सी वीटो के थ्रू ये कर पाते हैं? ये सस्पेंसिव वीटो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, ये उनका कौन सा वीटो पावर है? सस्पेंसिव वीटो पावर है। नाउ नेक्स्ट, बिल ओरिजिनेट इन राज्यसभा, विल इट लैप्स? नो, इट वोंट लैप्स। तो ये सारे बिल्स क्या होंगे? लैप्स नहीं होंगे। सो इजी वे में क्या रखना है? जो भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है, या फिर जो भी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट होके वहीं पे, या फिर वो लोकसभा से ओरिजिनेट होके राज्यसभा में, स्टिल इट विल लैप्स। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो, कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू सच काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे मान लीजिए दिस इज लोकसभा ने बिल भेज दिया
तो लोकसभा से बिल क्या है, पास्ट, बिल भेज दिया राज्यसभा में, ठीक है। सो पास्ड बाय लोकसभा, ओके, बट पेंडिंग इन राज्यसभा। अब इसका क्या होगा, आपको मैंने अभी एक ट्रिक कराई थी कि अगर बिल ओरिजिनेट भी होता है लोकसभा से और वो दूसरे हाउस जाएगा तो इट विल लैप्स। बस कौन से केसेस में नहीं होगा, या तो बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा में ही रखा है, या फिर वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रुका, या फिर प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है। इन्हीं चीजों में बिल लैप्स नहीं होगा। इन अदर वे राउंड, बिल पास्ड बाय राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा, it will also lapse. So I guess now you are clear with the Article 85 how summoning is done. After summoning, adjournment session we have seen. In summoning we have seen all the sessions of the parliament. Then we have seen adjournment sine die motion. After adjournment sine die motion, we have seen how prorogation takes place and what is the role of dissolution. So thank you so much, and please keep supporting us. We have seen a very positive response from your side. So please like and subscribe to our channel, and it keeps on motivating us. Thank you.